Hello. Yes, Jessica, go ahead, please. Yeah. Yes. Good afternoon, everyone. I am Jessica, welcoming you on behalf of the EU India Technical Cooperation Project Energy for the third workshop cum web meeting of the 60 megawatt grid connected rooftop solar program. Today's workshop is being organized in partnership with UPPCL and UPNEDA for the nodal officers of rooftop solar program of DISCOMs and UPNEDA officers. Before we start our session today, let me, on behalf of our project team, thank everyone for being a part of today's workshop, and especially Pawani sir, who is always a part of our workshops and every initiative. But right now, he's been called away for some urgent meeting, so we are hoping that he'll be joining us at some time later. And of course, Viralika ma'am, who's aggressively striving towards achieving the target through unified efforts. And here also I'd like to mention that we have Mr. Rajneesh Kumar from PSPCL, who will be sharing a bit of his experience working with us. And next up, we have our colleague Atul, who everyone is quite familiar with. Will present a short overview of the current status of the program in Uttar Pradesh. Atul. Yeah, thank you, Jessica. I just got a message from Mr. Khangrot. I think he's in the secretariat for a meeting, so maybe if he gets free, he'll join us. Sure. So anyway, I'll just present and then I'll give the mic to you back. I just want to share two slides about today because today we are doing the third workshop and it's been 2 months we're doing this after our second workshop. And if you see the screen, I've just put down some latest numbers from our UPNEDA rooftop solar portal. So till yesterday evening, I would say, the UP rooftop solar program for the phase 2 had received an applications of above 12 megawatts, which is a good number. So 12 megawatt of applications have been received. Out of those, 6.7 megawatt of applications are already approved, and 4.6 megawatt is already installed. So, Atul, I'm sorry that I'm disturbing you, but I believe that you should ask everybody to mute mics because there is some noise. Surely. Mr. Prasanjit Das, can you please mute your mic? Thank you. Okay. Yes. So thank you so much. So I was talking about the current status of the program in the state and just the numbers which I told you. And today we're talking about this fourth point. There are no PCRs submitted to the ministry. So this is something really important. Today we have Mr. Alvin Das with us, the IT head at UPNEDA, to guide us through how this process can be done from the UPNEDA portal, how the DISCOMs can submit the PCRs using the UPNEDA portal to the SPEL portal. So this is a very important step for which we, this is also part of this webinar today. And coming back to the second slide, I will talk about specific to DISCOMs. There are 7 DISCOMs operating in Uttar Pradesh. Out of this, 5 are public DISCOMs and 2 are private operated DISCOMs. And you can clearly see on the screen, MVVNL is leading with installed capacity of 3.6 megawatt already till yesterday, and we have all the other DISCOMs also coming through. So we have achieved 7% of the total target of 60 megawatt till today, and we have another 8 to 9 months to go. I think this is something which is very aggressively to be achieved, and for this we will be discussing a lot of interventions today. We have CE UPCL, who Jessica already mentioned. She is aggressively working on program in Uttar Pradesh and hand holding and supporting in all possible ways. We'll have in her intervention as well. She has prepared some inputs on the policy side and the program side for you, which she'll be presenting. So thank you, Jessica. This is what I had today, and I'll be talking through in the presentation all while in the webinar. Thank you. Jessica, can you please take over?
Sorry. Thank you, Atul. Thank you for the words. Next up, we have our project team leader, Mr. Marek Zabrowski, who will be giving the opening remarks. Marek, over to you. I thank you very much, Jessica. Good afternoon to everybody. I believe that the opening remark should belong to UP, who is implementing the program. But anyway, I feel privileged to open the session. Thank you very much for wonderful, great cooperation. The UP NEDA and the other officials from UP are extremely helpful and pushing us to do the best. Unfortunately, our project is approaching the end, so hopefully we would be able to support UP for another couple of months. I have no idea how many. And I would strongly recommend to UP to contact Ministry and EU delegation. Maybe there is some option to continue our cooperation. So have a good and fruitful time during the workshop, and hopefully see you soon. Thank you. Thank you, Marek. Thank you. So we just got a message that that Bhavani sir has deputed Shri Ajay Kumar to open on his behalf. Ajay ji? Maybe we can invite Ms. Elka Dubey, and Ajay ji will join us later. Yeah. Yes, yes. Varalika ma'am. Hello. Yeah. Varalika ma'am. Yes. Thank you so much, ma'am. It's my few words pleasure. from you. Yes. Hello. Yes, ma'am. You're audible. We can hear you. Yeah. Hello. Yes. Yes, ma'am. You're audible. We would request a few words from you. Thank you. Yeah. Yeah. Actually, this meeting. Hello, everybody. And before saying anything, I'm again thankful to European Union to once again arrange this meeting for all of our DISCOMs to see that these DISCOMs work properly for all of the formalities which are related to spin integration, or then going forward for subsidy disbursement. So these things already there have been so many meetings, but because the time is near, we have requested MNRE to disburse the subsidy part of it, CFA. So once again, it was important for all of our officers to see what are the formalities and how and at what level it will be, the formalities will be done by the DISCOMs. So I'm thankful, and I will request European Union to continue on the training part of it. Ma'am, can I share the screen? I understand you wanted to talk about that PDF you shared, so maybe you can just talk about the PDF if I share on the screen, the UPPSL FAQ PDF. Yeah, I would also like I'm just sharing it. Maybe this is a good time to talk about it. So yes, yes, yes. Already आपके screen पे दिख रहा होगा, तो आप एक बार इसके बारे में बता दीजिए. Yes. हाँ, बिल्कुल. तो मैंने अपने सभी ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि MNRE की स्कीम है और हम लोग पहली बार कर रहे हैं डिस्कॉम से, तो मैंने भी एक जिस्ट टाइप FAQ कह सकते हैं कि हम लोग इसमें 1 by 1 देख लेंगे कि हम लोग स्कीम है क्या और इसमें क्या क्या करना है. तो कंटेंट्स वाले पेज पे मैं हूँ. MNRE ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर स्कीम का फेज 2 डिस्कॉम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो कैन यू प्लीज मूव टू फेज 2, पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 just yeah. तो आई हैव जस्ट गिवन द इंफॉर्मेशन कि हमारे यहाँ जो भी रिन्यूएबल का है
कुछ काम तो हम लोग रिन्यूएबल को प्रमोट करने के लिए डिस्कॉम से भी करते हैं, और कुछ जो है वो जैसा कि सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE भी करते हैं। और इन्हीं का एक ये आप ही का ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम चल रही है हमारे डिस्कॉम्स में, जिसको कि हम लोग फेज 2 कह रहे हैं। और फेज 2 इम्पोर्टेंट डिस्कॉम्स के लिए इसलिए कि इसमें जो MNRE गाइडलाइंस है उसके हिसाब से इस फेज 2 को इम्प्लीमेंटेशन का काम हमारे डिस्कॉम्स को दिया गया है। तो थोड़ा सा और ऊपर करिए प्लीज, इसको थोड़ा सा इस पेज को ही थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसका। हाँ नहीं पेज पे ही नीचे थोड़ा सा, पेज पे ऊपर और ऊपर चले जाइए। हाँ अच्छा, इसमें मैंने अभी नहीं देखा, ठीक है राइट। नेक्स्ट पेज प्लीज। हाँ नेक्स्ट पेज में चले जाइए। ये सब कुछ मैंने व्हाट्सएप पे भी अपने डिस्कॉम्स को शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे जाइए। हाँ तो इसमें हम लोगों को सब ये पता होना चाहिए कि इसमें जो भी डेवलपर्स, पता भी है, मैं रिपीट कर रही हूँ इसके पहले वाला पेज, जो भी हमारे डेवलपर्स हैं जो रूफटॉप सोलर LMV1 के हमारे उपभोक्ताओं की छतों पर लगाया जा रहा है, उसके लिए जो डेवलपर्स का चयन किया है वो यूपी नेडा ने किया है, क्योंकि MNRE गाइडलाइंस में ये था कि अगर डिस्कॉम्स हम इनको परमिशन दे देते हैं यूपी नेडा को, और ये भी हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि यूपी नेडा एक्सपीरियंस्ड है और वो फेज 1 कर चुके हैं, तो ये जो सारा इसका टेंडरिंग का काम था और रेट्स डिस्कवरी का काम था, वो हम लोगों ने यूपी नेडा से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमारे लिए किया है। इससे पहले वाला पेज दिखा दीजिए प्लीज, उसमें रेट्स हैं। इससे पहले हाँ तो ये अप्रूव रेट्स हैं इसमें, जिसके लिए यूपी नेडा का जो लेटर नंबर था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और उसमें ये भी बता दिया है कि 1 से 10 किलोवाट तक जो अप्रूव्ड रेट है वो 38,000 पर किलोवाट है, और 11 से लेके अब 100 किलोवाट तक अगर लोग लगाना चाहें तो वो 32,000 पर किलोवाट है। अब जो इन्होंने एम्पैनल्ड किए हैं डेवलपर्स, या जिनको हम इंस्टॉलर्स भी बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है अप्रूव्ड फर्म की लिस्ट, वो मैंने इस पेज पे शेयर किया है कि आपने यूपी नेडा ने हमारे लिए यूपी नेडा सोलर रूफटॉप पोर्टल.com करके पोर्टल भी बनाया हुआ है, जिसपे ये अप्रूव्ड फर्म 71 की लिस्ट है। और आगे आपको इस लिस्ट की जरूरत पड़ेगी सभी डिस्कॉम्स को, क्योंकि जो भी इसी पोर्टल के ऊपर सभी डिस्कॉम्स को यूपी नेडा ने यूजर आईडी और पासवर्ड भी दिया हुआ है नोडल ऑफिसर्स को। तो जो इनकी लिस्ट है, जहां जहां लगता चला जा रहा है और जहां भी हमारे डिविजन्स JCR अपलोड कर रहे हैं, मतलब ज्वाइंट कमीशनिंग रिपोर्ट जब अपलोड कर देते हैं तो उसकी लिस्ट सारी इसी पोर्टल पे है। तो उसमें आपको ये बस चेक करना पड़ेगा कि ये जो 71 जितना भी इंस्टॉलेशन हुआ है वो इन्हीं 71 एम्पैनल्ड इंस्टॉलर्स ने किया होना चाहिए। तो लिस्ट की अप्रूव्ड फर्म और बाकी भी यूपी नेडा सोलर रूफटॉप पोर्टल पे सब कुछ कहाँ इंस्टॉल हो रहा है आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक शॉर्ट में टेबल बना दी है, एज पर गाइडलाइंस क्या हमारे को सब्सिडी देनी है। तो अगर हम 1 किलोवाट लगाते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 40% सेंट्रल सब्सिडी है, स्टेट सब्सिडी 15,000 है, और ये दोनों मिला के 30,200 है। लाइकवाइज हम आगे गए हैं और जब हम 4 किलोवाट पे गए तो 3 एंड अबव ये सेंट्रल सब्सिडी 20% हो गई। उसको मतलब हमें एडिशनल करना है अप टू 345,600, देन ऑन द नेक्स्ट फोर्थ 38,000 का 20%, 45,600 में जब 38,000 का 20% जोड़ा गया तो दिस फिगर कम्स एज 53,200 एंड द स्टेट सब्सिडी इज 38,000, द टोटल सब्सिडी इज 83,200। तो लाइकवाइज सब हमने 10 किलोवाट का और
इस तरह का ये मैक्सिमम है, 10 किलोवाट के ऊपर भी इस तरह से आपको सब्सिडी दी जानी है। सभी डिस्कॉम्स इसको देखेंगे कि व्हाट शुड बी डन। अगर कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यूपी नेडा से और मुझसे पूछ भी सकते हैं। और सबसे अच्छा ये होगा कि आप एमएनआरई की गाइडलाइंस देख लें। गाइडलाइंस के लिए भी एमएनआरई की साइट पे गाइडलाइंस हैं, और जो रेलेवेंट पार्ट है एमएनआरई गाइडलाइंस का वो मैंने ये जो येलो से हाईलाइटेड है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस 40% ऑफ बेंचमार्क कॉस्ट, नीचे उसमें स्टार स्टार करके लिखा हुआ है। रेजिडेंशियल के लिए अबव 3 किलोवाट पे एंड अप टू 10 किलोवाट कैपेसिटी, दिस इज 20%। तो ये बाकी भी आप अपने स्तर से भी ये एमएनआरई की गाइडलाइंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज प्लीज। हाँ, ये जो गाइडलाइंस है इनका मैंने लिंक दे दिया है, https://mnre.government.in/img, ये टोटल पूरा कंप्लीट लिंक है वहाँ पे। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें से वो मैंने सबको एक जगह मिल जाए तो थोड़ा सा मैंने उसको पॉइंट को लिख भी दिया इसी अपने उसमें पीडीएफ में, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसमें पॉइंट नंबर 4 है, द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स शुड क्रिएट कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट by making enabling provisions in their regulations and smooth approval process required for rooftop system। तो हम लोगों का enabling regulation तो है ही, RSPB रेगुलेशन 2019 में हमें LMV 1 पे नेट मीटरिंग की सुविधा देनी है, ये ऑलरेडी रेगुलेशन में है। और जो अप्रूवल प्रोसेस है इसके लिए मैं नोडल ऑफिसर्स को फिर बोलूंगी कि ये अपने अपने डिस्कॉम्स में चेक कर लें कि ये डेट्स में एक टाइम बाउंड हो जाए कि जिस डेट को एप्लीकेशन आती है उसका कुछ आप अपनी तरफ से इसको ऑर्डर करिए, क्योंकि वो ऑर्डर डिस्कॉम को ही करना है। अपने सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को हर चीज का एक टाइम बाउंड इनको कर दीजिए। फिर इसके बाद जैसे बाकी सब तो अभी नॉर्मल जो डिस्कॉम के लिए मेजर था, ये टारगेट्स को दिखाया है मैंने। फॉलोइंग टारगेट्स आर अलॉटेड, और वो एमएनआरई का ऑर्डर नंबर भी मैंने उसमें लिख दिया है। इस हिसाब से इस ऑर्डर से MVVNL को 19 मेगावाट, पश्चिमांचल को 12 मेगावाट, पूर्वांचल को 10 मेगावाट, दक्षिणांचल को 11 मेगावाट, केस्को 4 मेगावाट एंड 2 आर प्राइवेट डिस्कॉम्स, तो उनको 2-2 मेगावाट दिया गया है। ये अभी मैंने ये भी बता दिया है कि इसको जो ये टारगेट एलोकेशन था एमएनआरई का ऑर्डर 4 अक्टूबर 2019 से इस गाइडलाइन में ही लिखा हुआ है कि 15 महीने के अंदर किया जाना था, लेकिन कोविड के वजह से ये 5 महीने और बढ़ाया गया है, और इसमें रिवाइज टाइमलाइंस फिर यूपी नेडा ने अभी निकाल दी है, तो वो मैं शेयर कर लूंगी, इसमें एक और पेज बना के बाद में आपको दूंगी। अब ये एक चिट्ठी जो हमें एमएनआरई से मिली हुई है, इट्स ए काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हमको मंथली स्टेटस रिपोर्ट भेजना है। वो सारे तो डिस्कॉम्स भेज रहे हैं, पर इस बार केस्को ने नहीं भेजा था। तो यहाँ पे जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं उनको सबको ये जो आपका रिपोर्ट का फॉर्मेट है वो उनके पास है और वो भेज भी रहे हैं, तो इंश्योर कर लीजिए आगे से कि बाय द एंड ऑफ लास्ट डे के पहले ये चला जाए। मतलब इसको बार बार एमएनआरई आपसे पूछे और आपको याद दिलाए, ऐसा ना हो जाए। इसमें ये तो सारे आप ही लोगों के नंबर हैं, जो आप एक दूसरे से अगर बात करना चाहते हो कि किस डिस्कॉम में कौन से नोडल ऑफिसर हैं, तो आप आपस में भी बात कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑर्डर ये खासतौर से मैंने इसमें डाला है, ऑर्डर नंबर 61, दिस वाज इश्यूड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इसमें
बीइंग दी होल्डिंग कंपनी यूपी पावर कॉर्पोरेशन के एमडी ने सभी एमडीज को, सभी डिस्कॉम्स के एमडीज को ये एक ऑर्डर कर दिया है, जिसमें उन्होंने एक एक बता दिया है कि एक्सियंस ऑफ डिफरेंट डिविजन्स विल बी द नोडल ऑफिसर्स, उनका क्या क्या काम है, ये सब कुछ जो है वो इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, इसको सारे लोग अपने पास रखिए। और बेसिकली मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो मैंने ये बुकलेट बनाई है, वो कई बार क्या होता है कि एक्सियंस को नहीं पता है, और वो आप अपनी तरफ से सारे नोडल ऑफिसर्स को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो सभी एक्सियंस को ये बुकलेट फॉरवर्ड कर दें, ताकि कई बार फर्म्स को 2-3 जगह ऐसा हो चुका है कि पश्चिमांचल में और या कहीं, तो प्रयाग में भी, प्रयागराज में ऐसा हुआ था, तो एक्सियन को पता नहीं था, तो फिर वो ही वाज इन ट्रबल कि पता नहीं हमें जेसीआर को करना क्या है, क्या करना है। तो बेसिकली आप लोग सभी एक्सियंस को और उनके चीफ लोगों को, एसईस को, सबको बाय ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस बुकलेट को प्लीज भेज दीजिए, ताकि उनको सबको पता चल जाए। इस हफ्ते में इनको बाय कम्युनिकेशन सबको भेज दीजिए। अच्छा, फिर मैंने कुछ पोर्टल बता दिए हैं, एमएनआरई पोर्टल कौन सा है, स्पिन पोर्टल कौन सा है, यूपी नेडा का पोर्टल कौन सा है। इसमें यूपीआरसी का भी पोर्टल आपको चाहिए होगा, क्योंकि उसमें हमारे को रेगुलेशंस मिल जाते हैं। वैसे स्पेसिफिकली आरएसपीवी रेगुलेशन 2019 है, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। एज पर दिस रेगुलेशन ये 2 चार्जेस हैं, वो भी सभी एक्सचेंज को पता चल जाएंगे, इसलिए मैंने कंपाइल कर दिया है कि एप्लीकेशन फीस अप टू 50 किलोवाट रुपीज 250 है। और उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करिए इसको प्लीज, मैं देख नहीं पा रही। हाँ, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है। ये सब चीजें आरएसपीवी रेगुलेशन में ही है। और नेक्स्ट पेज पे वो डेटा है, वो कॉस्ट है, वो मीटर के लिए ली जाती है, तो वो हमारी कॉस्ट डेटा बुक में है। ये सब कुछ मैंने इसमें एक जगह कर दिया है कंपाइल। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर और भी कुछ आपको लगता है डिस्कॉम एंड से कि इसमें होना चाहिए, जो एक्सियंस को फील्ड में पता होना चाहिए, तो इसको आप अपने स्तर से इसमें और भी ऐड करते हुए और फिर सबको बाय ऑफिशियल कम्युनिकेशन बता दीजिए। और उनको खास तौर से उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये भी लिख दीजिए कि इसमें जो हमारा टारगेट है उसको किस डेट तक पूरा किया जाना है। खास तौर से इसको बताइए कि टारगेट से अभी हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, और अगर हम जल्दी इसको, जब भी हमारे को सब्सिडी अभी एमएनआरई से मिलने ही वाली है, एक्सपेक्ट की जल्दी मिलेगी, उस बीच जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो हम लोग ये कर लें कि जितने भी हमारे जेसीआर अपलोड हो गए हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके और अपने स्तर से सारे नोडल ऑफिसर्स रख लीजिए, क्योंकि अगर सब्सिडी डिस्पर्सल में हम लोगों की तरफ से देर नहीं होनी चाहिए। जो भी है, अगर किसी भी स्टेज पे सब्सिडी पे हम लोगों की तरफ से या फिर इंस्टॉलेशन में डेवलपर्स की तरफ से, किसी भी स्टेज पे किसी से भी ना देर लगे, ताकि हम लोग समय से अपना टारगेट को अचीव कर पाए। तो इसको प्लीज देखिएगा। और अब तो आप लोग को सब कुछ पता है, तो यू कैन, आई होप यू कैन जस्ट चेक और इसको चेक करके रखिए। एक हफ्ते में काफी टाइम, 1 हफ्ते से 10 दिन में आप अपना पूरा चेक कर लीजिए, और आपकी आज की ट्रेनिंग में आगे यूरोपियन यूनियन बताएंगे कि आपको अब इसके लिए करना क्या है। तो प्लीज थैंक यू सो मच मैम। आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। हम भी ये इनविटेशन जो हमने भेजा था उसी ईमेल के ऊपर ये डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर देंगे, अगर आपको आगे फॉरवर्ड करना है सब नोडल ऑफिसर्स को, तो यू कैन फॉरवर्ड द डॉक्यूमेंट। मैम, आई वुड लाइक टू highlight here one more point. As you were very overwhelmingly inviting, we have Mr. Rajneesh Kumar, Senior Executive Punjab Power State Corporation, also with us. Yes, so you are very वेलकम, क्योंकि उन्होंने, मैंने भी बोला था और उन्होंने यहाँ पे आना एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज पंजाब इज डूइंग थिंग्स वेरी वेल, एंड हमें अच्छी बातें आपसे पता चल जाएंगी।
Exactly. So he is here, and we are fortunate enough he accepted our invitation. So Yeah. Rajneesh ji जो है senior XN है Power State Corporation Limited का, and he is handling the rooftop solar program for under this phase 2 program in Punjab with PSPCL. PSPCL again एक discom है पंजाब में. So the reason why we have invited Rajneesh Kumar ji, because he and his team is very effectively managing this program or implementing this program. So हम उनसे थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि एज अ डिस्कॉम ऑफिसर वो पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक कैसे फॉलो करते हैं, व्हाट आर द निटी-ग्रिटीज दे लुक इनटू, मतलब बहुत जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो हमारे साथ उसके अपना शेयर करें, ताकि वी आल्सो कम टू नो दैट व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय अ डिस्कॉम ऑफिसर इन इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट टिल द पीसीआर इज सबमिटेड. आई काइंडली रिक्वेस्ट रजनीश जी टू शेयर हिज इनपुट्स प्लीज. रजनीश जी. Good afternoon, all. Good afternoon, and you are welcome. Thank you for inviting me and my colleague Mr. Gagandeep for this interactive section with your all officers of UPPCL and UP NEDA. तो बेसिकली इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग देखते हैं. एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट है और सेकंड जो सब्सिडी रिलीज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करने हैं MNRE पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट इज सेकंड एस्पेक्ट. तो फर्स्ट जो है टेक्निकल एस्पेक्ट, उसके रिगार्डिंग जो हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट है जो कि MNRE की गाइडलाइंस जो टाइम टू टाइम पे दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने जो टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो हम सारा डॉक्यूमेंट जो है उसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम अपने लोकल जो ऑफिसेज हैं और उनके ऑफिसर्स जो है उनसे शेयर किया हुआ है. तो जिसके थ्रू उनको पता लगता है कि उन्होंने इन्वर्टर्स में क्या देखना है और आपके पैनल्स में क्या देखना है, कैपेसिटी कितनी देखनी है और अप्रूव्ड जो है कैपेसिटी वो कैसे है. तो बेसिकली इस तरह से रहता है. तो मैं इनिशियली मैं स्टार्ट करूँगा, बताऊँगा भी कि हमारा जैसे ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है उसमें जो कंज्यूमर है ऑनलाइन अप्लाई करता है, अपनी रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद ऑनलाइन वो वेंडर सेलेक्ट करता है. फिर वेंडर सिलेक्शन होने के बाद जो वेंडर है वो विजिट करेगा कंज्यूमर के घर, उसके बाद कुछ टेक्निकल डिटेल्स अपलोड करके सबमिट करता है फ्रॉम द कंज्यूमर साइड. तो जब वो टेक्निकल डिटेल्स सबमिट हो जाती हैं तो PSPCL के ऑफिस में ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होती हैं और पैरेलली जो हमारे यहाँ जो फॉरम्स रहते हैं, फॉरम A और D, आपके यहाँ पे भी होंगे, किसी और नाम से होंगे, तो वो फॉर्म जो है साइन डॉक्यूमेंट जो है सबमिट होता है पैरेलली. उसके बाद जो PSPCL के ऑफिसर्स हैं वो टेक्निकली फिजिबिलिटी है या नहीं चेक करके उनको अप्रूवल देते हैं. जब अप्रूवल दे दी जाती है उसके बाद वेंडर जो है कंज्यूमर के घर पे इंस्टॉलेशन शुरू करता है. तो इंस्टॉलेशन जब वो शुरू करता है तो उसको कंप्लीट करने के बाद जब फिजिबिलिटी अप्रूवल हो गई उसको कंप्लीट करने के बाद वो वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिट करता है कि मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया है, तो आप प्लीज़ इंस्पेक्शन कीजिए और अगर कुछ इसमें शॉर्टकमिंग्स हैं तो बताइए, हम चेंज करेंगे. अगर वो ओके हमें गो हेड दीजिए ताकि आगे मीटर इंस्टॉलेशन हो सके. तो इस है उसको कैसे चेक करना है, बेसिकली ये हमारा मेन पॉइंट रहता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जैसे हमारे टेंडर डॉक्यूमेंट हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रक्चर जो है 3 mm होना चाहिए और जो टिल्ट एंगल है पैनल्स का वो प्रॉपर होना चाहिए, लैटिट्यूड जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि लैटिट्यूड एंगल कितना है. और आपके जो इन्वर्टर्स हैं जो वो वहाँ पे लगे हुए हैं क्या वो IEC स्टैंडर्ड उनका पास है जो वो यूज़ कर रहे हैं, और जो मॉड्यूल्स वो यूज़ कर रहे हैं क्या वो IEC सर्टिफाइड हैं, और अगर IEC सर्टिफाइड नहीं है तो क्या वो BIS सर्टिफाइड है. तो इस केस में ये दोनों केस का मैं बता रहा हूँ आपको, सब्सिडी भी और नॉन सब्सिडी भी. तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली हमने अपने पोर्टल में ही डिफाइन कर दिया है डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन्वर्टर से ले लिए, इन्वर्टर कंपनीज जो हैं उनसे डॉक्यूमेंट सारे ले लिए हैं IEC स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग कि आपके पंजाब में कौन कौन से मॉडल सप्लाई हो रहे हैं और उनके जो IEC स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेट है वो हमें प्रोवाइड कीजिए
तो हमने वो लेके उसको हमने अपने पोर्टल पे स्पेसिफिकली वही मॉडल्स जो एंटर किए हैं जो पंजाब में यूज हो रहे हैं और वो हमारी नॉलेज में रहेंगे। उसके अलावा कोई और मॉडल जो हमने अप्रूव नहीं किया है वो थ्रू आउट पंजाब इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। और सेम जो है प्रोसीजर हमने अप्लाई किया हुआ है पैनल्स के लिए, मॉड्यूल्स के लिए। तो मॉड्यूल्स में हम दो चीज़ देखते हैं, जैसे इन्वर्टर्स हैं उसमें तो कोई इशू है नहीं है, DCR और नॉन DCR। तो उसके लिए तो हम चाहे वो मेड इन इंडिया है चाहे वो इम्पोर्टेड है, तो सिंपल हमने उनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर वो मीट विद कर रहा है तो हम उनको अलाउ कर देते हैं अपने पोर्टल पे। और पर्टिकुलरली वही नाम जो डिस्प्ले होते हैं जो हमारी तरफ से अप्रूव किए होते हैं। फिर उसके बाद मॉड्यूल्स में क्या है, दो तरह के मॉड्यूल्स हैं, सब्सिडी के लिए DCR मॉड्यूल्स हैं और नॉन सब्सिडी के लिए इम्पोर्टेड भी हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, IEC सर्टिफिकेट्स तो हम देखते ही हैं जो कि मैंडेटरी हैं, और इसके अलावा BIS, तो BIS अगर है तो IEC, अगर नहीं भी है तो चल जाता है। अगर इन केस, क्योंकि जो इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स रहते हैं वो BIS उनका नहीं होता है, और जो बेसिकली DCR मॉड्यूल्स हैं उसमें अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है BIS सर्टिफिकेट की। और मोर ओवर ड्यू टू कोविड जो है काफ़ी कंपनीज को BIS सर्टिफिकेट अभी मिल भी नहीं पाया है। उनकी टेस्टिंग जो स्पेसिमेन सबमिटेड है लेकिन फिर भी अवेलेबल नहीं हो पाया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मेन हमारा क्या है, DCR कंटेंट है। तो DCR कंटेंट में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या अश्योर कर रहे हैं कि जो अंडरटेकिंग हम लोग ले रहे हैं वो अंडरटेकिंग एक तो कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरर है मॉड्यूल्स का, उनसे ले रहे हैं। उनसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि आप जो DCR मॉड्यूल्स हैं उनको स्पेसिफिकली मेंशन कीजिए कि वो कहाँ पे बन रहे हैं, और उसमें सेल्स वो कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं तो वो मेंशन कीजिए, अगर किसी और से परचेज कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम मेंशन कीजिए। ये जनरल अंडरटेकिंग है जो हम लोग ले रहे हैं। फिर ये अंडरटेकिंग लेने के बाद हम वो मॉड्यूल जो है पर्टिकुलरली DCR सेक्शन में लिस्ट में ड्रॉप डाउन में प्रोवाइड करवा रहे हैं, और अगर नॉन DCR है तो सिंपली उनके टेक्निकल सर्टिफिकेट्स देख के, IEC सर्टिफिकेट्स देख के वो हम नॉन सब्सिडी में लिस्ट में मॉड्यूल नंबर मॉडल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा जो बेसिकली वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट जब ओके हो गया हमारे यहाँ पे, तो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं PSPCL के ऑफिसर जो हैं, डिस्कॉम के ऑफिसर्स। तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उसको चेक करते हैं कि वो जो वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट में उसने बोला था क्या वही चीज़ें वहाँ पे लगी हुई हैं एज पर टेंडर स्पेसिफिकेशंस, उसमें कोई डेविएशन तो नहीं है, स्ट्रक्चर वही लगा हुआ है 3 mm का, 2 mm का तो नहीं है, इन्वर्टर्स वही लगे हुए हैं जो अप्रूव किए हुए हैं, मॉड्यूल्स वही लगे हुए हैं जो अप्रूव किए हुए हैं, कोई और तो नहीं लगा हुआ। ये चीज़ें वो देखते हैं। तो वो ये चीज़ें सारी वो देख के जब उसको ओके करते हैं एज पर टेंडर स्पेसिफिकेशन, उसके बाद सिस्टम जो है वो अप्रूव हो जाता है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ बाई डायरेक्शनल मीटर। तो जब बाई डायरेक्शनल मीटर डिस्कॉम के ऑफिसर्स वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं आफ्टर सक्सेसफुल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो उसके बाद क्या रहता है कि JCR साइन होती है, ज्वाइंट कमीशनिंग रिपोर्ट, डेट इज ऑल MNRE स्पेसिफिकली। तो ये JCR जो है इसमें 3 पार्टीज के साइन रहते हैं, कंज्यूमर, डिस्कॉम ऑफिसर एंड वेंडर जिसने वो इंस्टॉल किया है। तो ये वो अपलोड करते हैं। तो अभी हम इसको अगर देखें सब्सिडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो MNRE का मैनुअल है जो उन्होंने डिस्कॉम के लिए स्पेशल प्रोवाइड करवाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए उनको है रिपोर्ट, दैट इज ए ज्वाइंट कमीशनिंग रिपोर्ट भी हम बोल सकते हैं, हमने इसको ज्वाइंट कमीशनिंग रिपोर्ट का नाम दिया है। सेकंड है प्लांट, फोटो ऑफ द प्लांट। थर्ड इज फोटो ऑफ द बेनिफिशियरी। तो ये हम लोग अपने पोर्टल पे ही अपलोड करवा रहे हैं वेंडर से ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि हम वेंडर्स को तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा चुके हैं
और वो पॉसिबिलिटी है कि आप वेंडर्स जो लिमिटेड होते हैं उनको ट्रेनिंग दे दें, लेकिन कंज्यूमर्स को ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करवा पाओगे उतने ब्रॉड लेवल पे। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड करने हैं हमारे PSPCL के पोर्टल पे, ये वेंडर्स द्वारा ही अपलोड किए जा रहे हैं। इसी में फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है जो MNRE मांग रही है, दैट इज अ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम बिल। उसके बाद जो कंटेंट, अब ये DCR कंटेंट अगर आप लोग देखेंगे इसमें बेसिकली ये फॉर्मेट जो है MNRE की वेबसाइट पे डाउनलोड्स में अवेलेबल है, तो हमने वही फॉर्मेट जो एज इट इज लिया हुआ है। तो इसमें जो वेंडर है वो सारी डिटेल्स फिल कर रहा है, उसका कंपनी का नाम क्या है, कितने किलोवाट का प्लांट उसने इंस्टॉल किया है, कंज्यूमर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है और सैंक्शन नंबर क्या है। सैंक्शन नंबर मीन्स जो हमने जिस सैंक्शन नंबर से उसको हमने एम्पैनल किया हुआ है। एंड द लास्ट इज द इशूड बाय डिस्कॉम, जो हमारा नाम रहेगा और आपके केस में आपका नाम रहेगा। उसके बाद टेक्निकल डिटेल्स हैं। सेकंड नंबर पॉइंट जो है DCR परफॉर्मे का, दैट इज अ PV मॉड्यूल कैपेसिटी और नंबर ऑफ PV मॉड्यूल्स, serial number of PV module make, and the most important things is the 5, 6 and 7, 8 numbers। PO नंबर, वेंडर ने किस PO नंबर से परचेज ऑर्डर जो है प्लेस किया, और परचेज ऑर्डर डेट क्या है, सेल मैन्युफैक्चरर नेम क्या है और सेल GST इनवॉइस नंबर क्या है। ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड है MNRE की तरफ से। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सपोज कीजिए एक वेंडर है, तो बेसिकली वेंडर्स जो हैं 2 तरह से अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं। एक तो वो जो अगर फॉर्मली अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो वो परचेज ऑर्डर आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वो यहाँ मेंशन कर देंगे और परचेज ऑर्डर डेट दे देंगे। लेकिन अगर वो फॉर्मली परचेज ऑर्डर नहीं दे रही, मीन्स वर्बली वो अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उस केस में जो इनवॉइस रहता है जिसने उनको सप्लाई किया है वेंडर को, उसमें कंज्यूमर का नाम मेंशन किया रहता है, एड्रेस, या वो वेंडर का नाम मेंशन करेगा और उसमें बताएगा कि मैंने इतने मॉड्यूल्स जो हैं इतनी कैपेसिटी के सप्लाई किए हैं। और साथ में उसके साथ में ही एक अंडरटेकिंग रहेगी, अलग से अंडरटेकिंग रहेगी, जिसमें वो जो कंपनी है, अगर हम बात करें कोई भी कंपनी है, चाहे अदानी है या विक्रम सोलर है, तो वो अंडरटेकिंग देगी कि मैंने ये मॉड्यूल्स हैं सप्लाई किए हैं, ये DCR कंटेंट है और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, जिसमें ये इस कंपनी का सेल यूज हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, वो जो सीरियल नंबर मेंशन किए हुए होते हैं अंडरटेकिंग में और जो सीरियल नंबर मेंशन किए हैं वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट में वेंडर ने, उसको मैच कर लेते हैं। अगर वो सेम है इट मींस इट इज ओके, इट इज ए DCR कंटेंट। हम डबल अश्योर करते हैं। फर्स्ट हमने कैसे अश्योर किया, आपको याद होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमने कंपनी से इंडिविजुअली जनरल अंडरटेकिंग ले ली है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेरे ये 4 मॉडल इस कैपेसिटी से मैं पंजाब में सप्लाई कर रहा हूं, जो कि DCR कंटेंट है, जिसमें ये इस कंपनी का सेल मैन्युफैक्चर मैं यूज कर रहा हूं, इस कंपनी का सेल यूज हो रहा है। एक अंडरटेकिंग वो होगी दैट इज जनरल अंडरटेकिंग, जो हमने पैनल मैन्युफैक्चर से ली है। उसके अलावा जब हम DCR परफॉर्मा जो ले रहे हैं उसमें एक अलग से अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर मॉड्यूल्स जो यूज किए गए हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो भी DCR कंटेंट ही हैं। तो उसमें क्या रहता है, एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मैं एग्जांपल अभी करता हूं, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सेल भी खुद बना रही हैं और आपके पैनल्स भी खुद बना रही हैं। तो उस केस में तो वो सिंपल लिख देते हैं कि हमने ये DCR मॉड्यूल हमने इंडिया में हमारी इस फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं और हम जो सेल है सोलर सेल वो खुद बना रहे हैं। अगर वो सोलर सेल नहीं बना रहे हैं तो अपने अंडरटेकिंग में वो क्या देंगे कि हमने सेल जो है जुपिटर या कोई और वेबसोल कोई भी कंपनी जो है बना रही है कि हमने इस कंपनी से खरीदे हैं और इसका इनवॉइस नंबर जो है इतना है, वो मेंशन करेंगे उसमें इनवॉइस नंबर। वो तो जो नंबर रहता है दैट इज इन 8th point of serial number 2 of MNRE DCR परफॉर्मा।
तो वो जो सीरियल नंबर रहेगा, इनवॉइस नंबर, वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो उससे क्रॉस हो जाता है। आपने बेसिकली जो लूप है, जो लिंक है, वो कंप्लीट करना है इनिशियली से लेके फाइनल तक, ताकि आप अश्योर हो सकें कि जो मॉड्यूल्स हैं वो मेक इन इंडिया हैं, सेल्स जो हैं वो मेक इन इंडिया यूज हो रहे हैं, जो आपको सप्लाई किए गए हैं। तो इसी तरह हम लोग चेक करते हैं। तो जैसे कि एमएनआरई ने अपनी जो डीसीआर परफॉर्मा है उसमें लिखा हुआ है कि वो कभी भी चेक कर सकते हैं कि जेन्युइनिटी वो प्रॉपरली डीसीआर है या नहीं है, लेकिन हम इन एडवांस ही ये अंडरटेकिंग और सारे डॉक्यूमेंट्स इन एडवांस ले रहे हैं, ताकि हमें बाद में इसके लिए हसल ना करनी पड़े, क्योंकि उस टाइम पे पॉसिबिलिटी सारे डॉक्यूमेंट्स लेना एकदम से सारे वेंडर से पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, इसलिए हम एडवांस में लेके अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं स्पेसिफिकली उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर दूंगा, तो प्लीज आप पूछिए। थैंक यू सो मच रजनीश जी। आई थिंक आपने सब कुछ काफी डिटेल में शॉर्ट में बता दिया, बट दिस इज रियली गुड। आई थिंक you're really working effectively on this program. मैडम, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं सर से, नहीं तो फिर हम यूपी नेडा के पास जाएंगे एंड वी कैन टेक क्वेश्चंस एट द एंड। मिस दुबे, आई थिंक यू विल हैव टू, आपको माइक अपना ऑन करना पड़ेगा। I think sir उनका network I would anyway she will join us, so sir thank you. I think अगर questions आएंगे so we'll come back to you. अगर आपके पास अभी सर थोड़ा टाइम है तो मे बी आप आधा घंटा और रुक सकते हैं, it will be really helpful for us. अगर questions at the end में आएंगे तो we'll come back to you. Thank you रजनीश जी। Okay, thank you. Now I'll request I think Ajay ji has joined us. Ajay ji, senior program manager from UP NEDA. Ajay ji, आप कुछ इनपुट्स देना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम अलविन जी के पास जाएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, पोर्टल के लिए। नमस्कार आप सबको। अभी तो हम लोग जो है पोर्टल के बारे में जो स्क्रीन पोर्टल पे अपलोड करने की बात है, उस पर हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा छोटा सा। अलविन जी हमारे साथी जो है उस पर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में बात करेंगे। Surely sir. हेलो। हाँ जी अलविन जी, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए अपनी। मैं छोटा सा अपने ऑनलाइन पोर्टल है उसको प्रेजेंट करूंगा। मेनली हमारे डैशबोर्ड है, जो भी एप्लीकेशंस कंज्यूमर की तरफ से। सर आपकी स्क्रीन, आपकी हाँ अलविन जी आपकी स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है अभी। अब आ रही है? नॉट ओके? I think not yet. Abhi. Yes, it has started to appear. We can see the dashboard now. You can see the dashboard, yeah? Yes, we can see it. So जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं वो एक एडमिन हमारा पैनल है, उसके डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो जाती है इसमें। तो पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो आज की जो एप्लीकेशन होगी उनको वो आप सबसे पता लगेगा। और अब तक जितनी भी एप्लीकेशन आ चुकी है फेज 2 में, अब तक हमारे पास लगभग 2874 एप्लीकेशंस जो है वो लोगों ने रजिस्टर की। एंड उसमें से बहुत सारे लोग तो अभी से रजिस्टर करा चुके थे, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो 1467 लोगों ने ही अभी डाले। उसके आगे मतलब उसके जो नेक्स्ट स्टेप पर हुआ है, टोटल 5 स्टेप्स हैं इस पोर्टल पे। तो हम लोग का जो काम होता है वो होता है कि जो भी एप्लीकेशंस विद डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको हम लोग रीचेक कर लेते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। रीचेक करने के बाद उनको जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं उनको अप्रूव कर देते हैं, और जिनमें कुछ कमियां होती है तो उनमें उनको रिजेक्शन मोड पे डाल देते हैं। और इसका एसएमएस जो होता है वो जो भी कंज्यूमर होता है उसके पास रेगुलर जाता रहता है इस तरीके। तो अभी तक हमारे पास लगभग
जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, वो अराउंड 1428। इतने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कराते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है कि इनको 120 डेज में सिस्टम को लगाना होता है। तो उसके आगे की जो प्रोसेस वो इस तरह से आ रही है। सिस्टम इंस्टॉलेशन अंडर प्रोसेस में है और ये आपके 977 सिस्टम हैं ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और आउट ऑफ 1420 और अराउंड 840 JCRs अपलोड हो चुकी हैं। अब इनकी जिन जो भी सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं, जैसे कि JCR पर अपलोड हो जाती हैं, तो ये तो एक कहते हैं एक सेंट्रल डैशबोर्ड है। इसी तरह से सभी डिस्कॉम्स का अलग अलग पोर्टल बना हुआ है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है नीचे दिखा दूंगा डिस्कॉम वाइज। हाँ, ये डिस्कॉम वाइज आपको इसमें दिख रहा है कि कितनी अलग अलग डिस्कॉम्स की क्या स्टेटस है, उन्होंने कितना, उनकी कितनी कैपेसिटी यूज हुई है टोटल 60 मेगावाट के अगेंस्ट में, कितनी उन्होंने इंस्टॉल कितनी कर चुके हैं और कितनी JCRs उन्होंने अपलोड की हुई है। और अलग अलग डिस्कॉम्स को हम लोगों ने उनकी लॉगिन पासवर्ड है, जिससे कि वो सारा का सारा एप्लीकेशन रिलेटेड सारा का सारा डेटा इसी तरह के डैशबोर्ड पे वो अपनी लॉगिन से भी देख सकते हैं। ना अब जैसे इन जो भी इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनकी एप्लीकेशन जो है JCRs अपलोड हो चुकी है, उनको हमें स्पिन पोर्टल पे जैसे अपलोड करना होता है। तो उसके लिए ये चूंकि तो सेंट्रल डैशबोर्ड है, इसको अलग अलग डिस्कॉम अपनी अपनी लॉगिन से करेंगे। तभी हमने रिक्वेस्ट करके PU विनोद की एक लॉगिन ID ली थी, तो मैं आपको उसमें से दिखा दूंगा कि इसको हम इस डेटा को स्क्रीन पर किस तरह से पुश करना है। तो ये PU विनोद की लॉगिन खुल गई है। उसमें वही सेम डैशबोर्ड है, बट इसमें सिर्फ आपको PU विनोद की सारी डिटेल्स आपको डिस्प्ले में आएंगी। तो अभी तक PU विनोद के अगेंस्ट में 27 JCRs अपलोड हो चुकी है। जिन सिस्टम की JCR अपलोड हो चुकी होती है, वो इसका मतलब वो सारे के सारे सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं और लगभग उसकी फॉर्मेलिटी जो है ऑन पेपर वाली फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। तो इन्हीं एप्लीकेशन को हमें, जो फाइनल एप्लीकेशन होती है, उनको ही हमें स्पिन पोर्टल पर पुश करना होता है। तो एक मैं ऐसे करके बताता हूँ, जैसे अभी किसी भी एक एप्लीकेशन को हम लेते हैं इसको ओपन करिए। इसके बस दो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। इसमें जैसे कोई भी जैसे ये एप्लीकेशन लिए मिस्टर कल्याण सिंह की एप्लीकेशन को इसका डेटा चेक हो चुका है। तो अब ये सारी एप्लीकेशन ये आपको देखिए राइट साइड में 3 बटन दिखेंगे। एक तो ऊपर सारी डिटेल्स आएंगी, दूसरा राइट क्लिक होगा जिसमें आपको अप्रूव करना होगा, और तीसरा क्रॉस बटन है। अगर आपको इनके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई कमी लगती है, कुछ भी लगता है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ से आपको अगर लगता है कि ये इनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, तो आप इसको बिल्कुल अप्रूव कर देंगे। इससे अप्रूव कर, इससे पहले ओपन कर देंगे। ये इनके सारे डॉक्यूमेंट जो भी इनकी एप्लीकेशन के लिए जो भी डेटा है, वो इसमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपको उनकी बेसिक डिटेल होगी, बैंक डिटेल होगी, मॉड्यूल की डिटेल होगी, इन्वर्टर की डिटेल होगी, और उसके अगेंस्ट जो भी इनके जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी अपलोड किए जाते हैं इसमें। ये इनका फोटोग्राफ हो गया, इनके बैंक डॉक्यूमेंट्स हो गए, आधार कार्ड, बिजली का बिल, ये इनका एम्प्टी रूफ है, मतलब बिफोर इंस्टॉलेशन का है। ये
ये मॉड्यूल की डिटेल है इनकी। ये इन्वर्टेड डिटेल है। ये इनका जो आफ्टर इंस्टॉलेशन रूफ का फोटोग्राफ है। ये इनवॉइस है फर्म की। ये नेट मीटर डिटेल सर्टिफिकेट, और ये लास्ट में ये JCR फॉर्म है, और ये इसमें नेट मीटर का एक कॉन्फ़िगरेशन का भी एक बट MNRE के में को पुश करने के लिए इसमें उनको सिर्फ 5-6 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बट ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग अपने पोर्टल पे अपलोड करवा देते हैं। MNRE में इसमें से ज्यादा जरूरत होती है, एक तो JCR, प्लांट इंस्टॉलेशन फोटो, कस्टमर का फोटोग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मॉड्यूल लिस्ट एंड अंडरटेकिंग DCR। और जैसे किसी भी एक एप्लीकेशन को हमें पुश करना है तो उसके लिए इसको हमें पहले एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो बिल्कुल आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक लगते हैं तो इसको एक्सेप्ट कर, इसको एक्सेप्ट नहीं, ये आपसे पहले का आर यू श्योर, हमने इसे अप्रूव कर दिया। अब ये एप्लीकेशन होती है, देखिए आपको टॉप पे MNRE का एक वो दिख रहा है, इसमें 2 स्टेप्स हैं। ये जो आप पहले आपने जिसको अप्रूव किया है वो एप्लीकेशन स्टेप 1 में आती है। स्टेप 1 कौन सी? ये कल्याण सिंह एप्लीकेशन देखिए फर्स्ट स्टेप में आ गई है। इसमें इसकी सारी डिटेल्स हम पहले ही चेक कर चुके होते हैं। अब सेकंड इसको सेकंड स्टेप में हमें ले जाना, क्योंकि ये भी इसमें देखिए आपको एक PCR कोड भी जनरेट हो गया हुआ है। ठीक है, अब इसको सेकंड स्टेप में ले आते हैं। इसको पूरा किस पर एक बार सेकंड स्टेप में ले जाने से पहले इसमें ये देखना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अप्रूवल आईडी जो होती है PUV की है तो PUV को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी डेटा आपको ये पोर्टल से उठा लेता है सारी चीजें, और इसको सिंपली सिर्फ सबमिट कर देते हैं। अब ये एप्लीकेशन जो है स्टेप 2 में आ गई। मतलब अभी तो हमने सिर्फ इसका डॉक्यूमेंटेशन डेटा पार्ट को अभी पुश किया है। अब उसमें दूसरा जो स्टेप 2 होता है उसमें हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को पुश करना होता है। इसको खोल लो। अब इसमें देखिए ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स भाई JCR कस्टमर, अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनके हम लोगों ने अभी वहाँ पर डिस्प्ले में देखे थे, इनको हम किसी डायरेक्टरी में डाउनलोड कर लेते हैं अलग अलग केसेस की, एप्लीकेंट्स की, और उसमें से सारे के सारे इनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना होता है। और अपलोड करने पर सबमिट बटन क्लिक करना होता है। ये जितनी भी एप्लीकेशन का जो डेटा और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्ट्रेट अवे जो है आपका MNRE के स्कीम पोर्टल पर आपको ये पुश हो जाएंगे। तो यही सिंपल स्टेप्स है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। इसमें आपको कुछ पूछना है? इसमें एक चीज कम है अभी, थोड़ा सा भी वो DCR का जो सर्टिफिकेट है तो वो अभी इसमें ऐड करवा रहे हैं, ऐड हो भी गया है सकता है। बाकी हम लोगों ने इसको अपने पोर्टल पे डाल दिया है DCR का। 5 सर्टिफिकेट हमारे पोर्टल पे हैं, JCR है, प्लांट की फोटोग्राफ है, कस्टमर फोटोग्राफ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मॉड्यूल लिस्ट है। तो DCR का जो सर्टिफिकेट है वो अभी इसमें नहीं आ रहा है, तो उसको ऐड करवाया है। ये डाउनलोड हम लोग जो कस्टमर है जो लोग एप्लीकेशन डालते हैं। अलविन जी आपकी आवाज चली गई। एक मिनट में ऑडिबल। हाँ जी यस यू आर ऑडिबल। हाँ जी बिल्कुल। सो अलविन जी मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी एज यू सेड कि ऑलरेडी JCR ऑलरेडी सबमिटेड है,
तो अभी अगर डिस्कॉम्स आज स्टार्ट करते हैं पीसीआरस अप्रूव करना, तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे आल्सो, राइट? हाँ हाँ Okay. So, madam, if you have any questions or any of the discom officers, if you have any question for Alvin जी, आप पूछ सकते हैं कि ये प्रोसेस के अंदर ये एक्चुअली सेकंड प्रेजेंटेशन है, इन्होंने पहले भी एक बार फर्स्ट वर्कशॉप में भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था. तो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन राइटली आस्क हिम राइट नाउ. ये DCR का से रिलेटेड. हाँ जी, DCR का फॉर्मेट हम लोग डाउनलोड में ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो एनी कैन डाउनलोड इट एंड फिल इट एंड देन अपलोड ऑन द पोर्टल. और इसका एक लिंक हम लोगों ने इस पोर्टल में डाल दिया है, बना दिया है, तो वो उसमें भर रहे हैं जितने भी लोग हैं. तो जिनकी ये DCR आ जाएगी, उस उन्हीं लोगों को जो आगे फिर पुश करेंगे स्क्रीन पोर्टल पर. हाँ, hello everybody. Thank you, Mr. Alvin, to just illustrate everything. अब मुझे अपने डिस्कॉम ऑफिसर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनसे पूछना है कि ये कुछ भी पूछना चाहें आप लोग, जो भी बताया गया है कि हम लोग को कैसे आगे चलना है, उसमें आप कोई क्वेश्चंस अभी पूछना चाहे तो हम लोग पूछिए. यूरोपियन यूनियन भी है, ऑल्विन जी भी है. मिस्टर प्रसन्न जी दास जी ने हैंड रेज किया है. प्रसन्न जी क्या आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं? हेलो. ओके सर. प्रसन्नजीत दास फ्रॉम एनपीसीएल. ऑल्विन जी, आपसे एक क्वेश्चन है. जो हम कोई भी कंज्यूमर जब नेट मीटर के लिए एक्टिव करते हैं यूपी मीटर पोर्टल में, वहाँ पे पेमेंट गेटवे के अंदर में एनपीसीएल की पेमेंट गेटवे नहीं आते हैं. हेलो अलविन जी, शायद आपका माइक बंद है. हाँ जी. नहीं, हाँ, हम बताना चाह रहे हैं कि हम ये जो यूपी डेटा का पोर्टल, उसमें पेमेंट गेटवे का कोई प्रोसेसर है नहीं. सर कंज्यूमर जब अप्लाई कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपका पोर्टल के थ्रू जब एनपीसीएल सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे एक पेमेंट का ऑप्शन आते हैं. तो हमारे पोर्टल में इस तरह कोई वो नहीं है. इस तरह का हो सकता है मे बी ये शायद नेट मीटर का पोर्टल होगा, बट यूपी डेटा सोलर रूफटॉप पोर्टल पे पेमेंट से रिलेटेड कोई फी इसमें नहीं ली जा रही है. तो अलविन जी, एक क्वेश्चन ये है कि जो अप्लाई करना होता है, तो यूपी डेटा की पोर्टल के अंदर में जाके जो नेट मीटरिंग कनेक्शन है उसी के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब कंज्यूमर अप्लाई करते हैं. नेट मीटर आई थिंक नेट मीटर का जो पोर्टल है वो यूपीसीएल का है, और उसका लिंक हम लोगों ने अपने पोर्टल पे दे रखा है. ऑनलाइन करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग से मैनुअली उसको अप्लाई कर रहे हैं. तो ये हमें भी कोई पोर्टल बनाना है तो फिर आपके साथ भी इसको लिंक करवाना होगा. ये तो मैम से आप पूछ लीजिए. मैम से नेट मीटर से रिलेटेड पोर्टल जो डिजाइन करना है, जो भी करना है, इसके लिए तो सर आप मैम से डिस्कस कर सकते हैं. नहीं, अभी जितने भी सर कंज्यूमर अप्लाई कर रहे हैं वो तो आपकी पोर्टल में भी कर रहे हैं. यूपी नेटा की जो आपका एडमिन पोर्टल हमारे लिए दिया हुआ है उसके अंदर तो शो हो रहा है, बट हमें इन फ्यूचर में एनपीसीएल का भी कोई सब्सिडी पोर्टल ऐड करना है तो आपकी इस पोर्टल के अंदर हमें शो करवाना होगा. तो लिंक दे दीजिए, हम लिंक अटैच कर सकते हैं. हाँ, बस ये हमें जानना था बस. ठीक है सर, ठीक है. आप लिंक दे दीजिएगा जो पोर्टल होगा, तो उसका लिंक हम लोग अपने पोर्टल पर ऐड कर देंगे. अच्छा, ठीक है सर. और दूसरा एक क्वेश्चन था, अभी आपने सर दिखाए थे एक बटन अप्रूव करने के लिए जेसीआर की बात. ये बटन हमारी लॉगिन में शो नहीं होते हैं. अच्छा, एक्चुअली मैं अभी
डिस्कॉम्स को राइट्स का था, तो हो सकता है कि अभी आपके डिस्कॉम्स को वो हम अभी कर देंगे। अभी जैसे अभी जैसे सर मेरा एक केस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, आपकी पोर्टल में भी दिखा रहा है कि वो JCR अपलोडेड है। अभी जैसे अभी आपने दिखाया जी, इसके बाद PCR के लिए पुश करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा 10 to 20 मिनट आफ्टर मीटिंग में इसको कर दूंगा, तो आप भी इसको अप्रूव कर। राइट सर, थैंक यू। 20 मिनट हो जाएगा, वो आप भी अपनी एप्लीकेशन को उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया था उसको अप्रूव करके फिर स्क्रीन पर पुश करने का। ओके, थैंक यू अरविंद जी। ओके, थैंक यू मिस्टर दास। और कोई डिस्कॉम नोडल ऑफिसर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है अरविंद जी से, या यू हैव एनी जेनरिक क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोग्राम, या फिर PSPCL से मिस्टर रजनीश कुमार जी भी अभी हैं हमारे साथ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर। हेलो। हाँ जी, मदन लाल जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। मेरा सर रिक्वेस्ट इतना था कि अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, कैसको की स्थिति मजेदार नहीं है सर, तो मेरी थोड़ी सी हेल्प करें सर। बताइए। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्शन का इसमें क्या रोल रहेगा सर? आप विरालिका दुबे मैडम से पूछ रहे हैं क्वेश्चन? जी मैडम, ये मदन लाल जी हैं कैस्को से, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको शायद मैम अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका म्यूट है माइक। आप ही बता दें सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैम बता दें चाहे बता दें। मैडम के बिहाफ पे सर मैं नहीं बोलूंगा, मैडम के बिहाफ पे मैडम बोले ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको स्कीम से रिलेटेड कुछ बता सकता हूँ अगर आपका क्वेश्चन है तो। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अगर वो UPCL का है तो वो आंसर वही मैडम भी करेंगे। आपका कोई स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इम्प्लीमेंटेशन में कुछ क्वेरी है, प्रोग्राम से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड, या कोई टेम्पलेट से रिलेटेड, तो आप प्लीज बताइए मेरे को। जो हमारा मैनुअल चल रहा है और पोर्टल में बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है सर, तो अपडेट नहीं कर पा रहे इसको हम पूरा जो है। आपका जो मैनुअल चल रहा है, आई थिंक जो मैनुअल आपका है वो सिर्फ नेट मीटरिंग का प्रोसेस है। जी सर। और जो पोर्टल हैंडल करता है वो सब्सिडी, रूफटॉप सोलर सब्सिडाइज इंस्टॉलेशन को पूरा इंप्लीमेंट करता है। तो नेट मीटरिंग अभी भी सेपरेट ही है। नेट मीटरिंग ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रही है, नेट मीटरिंग आपके एंड पे होती है, डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं सिर्फ नेट मीटरिंग वाले। अच्छा, ठीक है सर। अलविन जी जो आपको बता रहे थे, कंज्यूमर आपके यूपी पोर्टल के ऊपर जाता है, वहां पे इंस्टॉलर सिलेक्ट करके फॉर्म भरता है, उसके बाद जो स्टेप्स होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को SMS जाता है, अलर्ट जाता है, और आप एक्शन लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करे जाते हैं, ना कि आप वहीं पे उसको अप्रूवल देते हैं। अलविन जी, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो मदन लाल जी, अगर आपको देखिए, आप नेट मीटरिंग प्रोसेस जैसे फॉलो कर लीजिए। रूफटॉप सोलर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, आपको जो अप्रूवल स्कीम से रिलेटेड करना है वो आप पोर्टल में लॉगिन करके करेंगे, जो अलविन जी ने आपको दिया है। आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी है? मदन लाल जी, आपके पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी है यूपी नेडा पोर्टल का? जी सर, है। तो आपको अगर आप उसको यूज करके देखिए, आपके ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशंस भी आई हैं, और आपके वहाँ 10 किलोवाट इंस्टॉल भी हो चुका है, जितने भी डेटा जी ने बताया। मैं इसको करता हूं सर, करता हूं। आप लॉगिन कीजिए। अगर आपको पोर्टल से रिलेटेड कुछ समझने में दिक्कत है, आप अलविन जी को जरूर कॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे को कर सकते हैं। वी आर देयर, आपको बता देंगे पोर्टल के बारे में। नंबर आप लोगों को मिल जाएगा सर? नंबर? हाँ जी, ईमेल अभी आएगी, मैं आपको ये सेशन के बाद वही इन्विटेशन वाली ईमेल के ऊपर मेल डालूंगा, और उसके अंदर वो जो मैडम ने डॉक्यूमेंट दिखाया वो भी आएगा, प्लस कॉन्टेक्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। अनुराग जी, हाँ जी। PUVVNL पूर्वांचल से बोल रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी तो एक सजेशन हम लोगों ने ये दिया था
कि जो वितरण खंड स्तर पर जो अधिशासी अभियंता है तो वो अवेयर नहीं होते हैं, बार बार प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से वेंडर्स को और कस्टमर्स को सफर करना पड़ता है अपना नेट मीटरिंग के। फिर वो जो हम लोगों के कांटेक्ट में है तो वो हम लोग कांटेक्ट कर लेते हैं, तो हम लोग उसको निराकरण करवा देते हैं। बट जिनका नहीं हो पाता है, जो फंस जाते हैं केसेस, तो इसके लिए हम लोगों ने एक सजेशन दिया था कि एटलीस्ट वेंडर एक्सियंस जो हैं उनके लेवल पर या तो उनको एक लॉगिन आईडी दिया जाए और वो इसको एक्सेस करते हैं, या अगर नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट एक एसएमएस उनके पास चला जाए कि आपके खंड में ये एक केस जो है लॉगिन हुआ है, और उनको कस्टमर का नंबर फॉरवर्ड हो जाए, मतलब जानकारी उनको मिल जाए, तो वो फिर उस चीज को थोड़ा सा उनके मन में भी आएगा कि हाँ ये क्या चीज है, इसको लाओ पूछे, अपने आप ही बात करें। तो इस पे अभी कुछ हुआ नहीं। मैडम से भी बात हुई थी, वारंता मैडम से इस बारे में। अच्छा। तो लेकिन अभी कुछ इस पे हुआ नहीं है। तो क्या अलविन जी, इसके ऊपर कुछ प्लान था क्या ऐसा? ये मतलब डिटेल्स इन्होंने शायद भेजनी थी। ये एक्चुअली इसमें ये था ना कि हमें जिनको एसएमएस को करना है, हमें उनके नंबर्स मुझे चाहिए। हाँ, वो आपने मेरे को याद है लास्ट टाइम मांगे थे, और आई थिंक जिसको हम नोडल ऑफिसर्स ने कहा था कि नंबर मेल करेंगे, ऐसा कुछ। नहीं, मैडम को नंबर भेज दिए, मैडम को नंबर भेज दिए मेल पर। अच्छा, आपको भी भेज देंगे, आपके पास जो मेल आईडी उस पर भेज देंगे। मैडम, मैम आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैम सारे टेंशन नहीं ले रही हूँ। हेलो मैम, आर वी ऑडिबल? हेलो। हाँ जी मैडम, अभी सुन पा रहे हैं। हाँ जी। हाँ, मैं थोड़ा एक और कॉल बीच में ले रही थी, तो एक्चुअली मैम ये अनुराग भल्ला जी हैं यहाँ पे। अनुराग जी ने एक पॉइंट रेज किया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के फोन नंबर पे एक एसएमएस चला जाए जब भी एप्लीकेशन रेज होती है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अलर्ट भेजना है, पर वो नंबर उनके पास है नहीं, तो अनुराग जी कह रहे हैं वो आपको सेंड किया, अगर आप उनको भेज देंगे अरविंद जी, तो काम भी होगा। नहीं, तो ये तो मैंने यूपी नेडा पोर्टल के लिए भी यूपी नेडा को भी रिक्वेस्ट किया है कि जैसी एप्लीकेशन आपके पास आती है वो संबंधित डिस्कॉम के एक्सचेंज को नोटिफाई कर दें। हाँ जी मैडम, तो वो नोटिफाई करने के लिए मैम उनको वो नंबर चाहिए ना जिसपे एसएमएस जाएगा। हाँ, वो मैं उनको सारे दे दूंगी लिस्ट। हाँ जी, तो वही अरविंद जी कह रहे हैं ना। अरविंद जी, आपको सिर्फ नंबर चाहिए ना सर? हाँ, ईमेल आईडी, नंबर, नाम, जो भी नंबर चाहिए वो अभी हमारे सारे नोडल ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, वो अपने अपने डिस्कॉम के नंबर और नाम एक्सचेंज के भेज दीजिए यूपी नेडा को। हाँ, अनुराग भल्ला जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, नंबर तो नहीं, नंबर दे सकते हैं, भेजे थे पहले, नाम तो नहीं दे पाएंगे, नाम तो डेली चेंजेबल है वो तो। दे दीजिए और उसके साथ डिवीजन का नाम दे दीजिए। हाँ, डिवीजन के नाम के साथ इन्हें फॉरवर्ड कर देंगे सीधे ही। बिल्कुल दे दीजिए। मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ सर, इसमें आप डेजिग्नेशन, नंबर और ईमेल आईडी दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एसएमएस और अलर्ट जनरेट करने में इजी रहेगा पोर्टल पे। जी भेज देंगे सर। आप ये अगर भेज देंगे तो इसके लिए फिर अरविंद जी इस पे कुछ एक्शन ले पाएंगे। आई थिंक डेटा ना होने की वजह से नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कल हम मॉर्निंग में अरविंद जी को सारा ये प्रोवाइड करा देंगे। हाँ, तो अरविंद से सभी लोग कांटेक्ट में हैं, उनके नंबर होंगे और सभी नोडल ऑफिसर्स के पास अरविंद जी का नंबर होगा। मैम, मैं अजय बोल रहा हूँ मैम, मीडिया से। जी मैम, आपसे अनुरोध है इस संबंध में कि आप अपने पास कलेक्ट करा लें मैम, हम आपसे ले लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए।
हमारे पास कैसे कलेक्ट हो जाएगा भाई? आपके डिस्कॉम का नंबर है तो आपके डिस्कॉम एमडी के यहाँ जहाँ से भी सारे नंबर एक साथ हैं वहां से लेके भेजिए। अजय बोल रहा हूँ नेडा से। सॉरी। अच्छा ऑफिस के, अच्छा सॉरी नहीं, वो सीधा भेज देंगे डिस्कॉम्स में, आप चिंता ना करिए अजय जी, वो भेज देंगे। एक कॉपी मुझे भी कर देंगे और भेज देंगे, उनके यहाँ सारे अवेलेबल रहते रेडिली। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैडम। वो भेज देंगे सारे डिस्काउंट से। मैम ये चीज अगर वो सभी लोग भेज देंगे तो अरविंद जी शायद इसको कर लेंगे इजीली। जी। और कोई क्वेश्चंस है मैडम जो डिस्कस करना चाहते हैं आप नोडल ऑफिसर से? हेलो, मैं वीरेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ। मेरे आपको बंद होगा। एक बार यूपी नेडा की साइट पे जो कस्टमर का पोर्टल है कि जहाँ कस्टमर हैज टू अप्लाई फॉर द सब्सिडाइज कनेक्शन, सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, वो एक बार पोर्टल दिखा देंगे, पोर्टल हाउ टू गो टू द पोर्टल लिंक जी। अभी अरविंद जी, अंजुल आई थिंक अरविंद जी वही पोर्टल अभी दिखा रहे थे, सेम पोर्टल ही वाज डेमोंस्ट्रेटिंग। एक बार जस्ट वो इंटरफेस देख लें। हाँ जी अरविंद जी ठीक है, दिख रहा है बताइए। आप दे सकते हैं, इसमें अप्लाई है, अप्लाई ऑनलाइन में देखिए नीचे दिया हुआ, ये आपका पूरा फॉर्म खुल जाता है। इसमें ऊपर तो बेसिक डिटेल्स हैं, इस पर ये बैंक डिटेल्स, इसमें ये कनेक्शंस की डिटेल्स होती है, ये इतनी बेसिक डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होती है। सर यहाँ पे डिस्कॉम में देखेंगे ना, एनपीसीएल शायद विजिबल नहीं है वहाँ पे। कहाँ पर? इसमें डिस्कॉम में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए गौतम बुद्ध नगर, देन जो वो आता है आपका डिस्कॉम, वो पीवीएनएल आता है ना, ग्रेटर नोएडा नहीं, इसमें शायद बताया था ग्रेटर नोएडा सिटी, कुछ उन्होंने बताया था। यहाँ पे एनपीसीएल नहीं आ रहा है पीवी डिस्कॉम में ना, ये एनपीसी में आ रहा है, ग्रेटर नोएडा में आ रहा है, गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू। Alvin ji, Prashanjit Das here from NPCL. Actually, sir, in UP, district is one, Gautam Buddha Nagar, and there is two cities. One is Noida and one is Greater Noida. For Greater Noida, actually, NPCL is looking after for the net metering, and for Noida, there is another discom is Paschim Anchal, PVBNL. नोएडा सिटी के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए है ये पश्चिमांचल। If you select Gautam Buddha Nagar, then two city will come, Noida and Greater Noida. For Noida, it is under the PVBNL, and for Greater Noida, it is under the NPCL. इसमें सिटी का को अलग डिफाइन कर दिया, ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर है, ग्रेटर नोएडा अलग है और नोएडा अलग है। Yes, yes. Okay, thank you, Alvin ji. वो अलग अलग कर दिए इसलिए। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हेलो
हाँ जी मदन जी। सर ये चाह रहे थे जो डिटेल हमें देना है एक्सचेंज का, उसमें नेम, फोन नंबर, आईडी, मेल नंबर और सर क्या चाहिए? ईमेल आईडी और सर एड्रेस जी सर। सर्कल या डिवीजन जी बिल्कुल। सर्किल, अच्छा अच्छा डिवीजन ठीक है। 4 कॉलम बनाएंगे सर? जी बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Any more questions? Anybody has? Okay, so I think all discom officers आप हाँ जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? ओके, सो आई थिंक आप लोग को जैसे अभी एक अलर्ट के लिए अनुराग जी ने मेंशन किया, आई थिंक इट इज वैलिड अगर आप वो अलर्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को देना चाहते हैं। सो इन दैट केस आप वो प्लीज डिटेल्स भेज दीजिएगा अलविन जी विद कॉपी टू विरालिका मैडम, विच विल हैव नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड एड्रेस, सर्कल नेम जरूर मेंशन कीजिएगा। तो वो डिटेल अगर आप उनको मेल कर देंगे, ही विल ट्राई टू जनरेट दोज alerts from the portal whenever an application is submitted or processed. So that will be done. Another thing is आपको इस वर्कशॉप के बाद हम जो एक comprehensive brochure UPPCL ने डेवलप किया है, we will send that to you. That has information about the program and some related thing that will be helpful. Secondly, आप लोग ऑलरेडी आपके पोर्टल्स के ऊपर ऑलरेडी JCRs काफी सबमिट हो चुकी हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि आप लॉग इन करके यू विल ट्राई टू सबमिट दैट आफ्टर अप्रूवल, यू विल सबमिट दैट फॉर टू स्पिन पोर्टल, आप उसको पुश कर पाएंगे। अगर आपको कुछ इशू होता है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अलविन जी, ऑब्वियसली ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज. I think that's it. The purpose was that we will show you how the portal looks like and how it functions. And the best part is today हमारे साथ आज रजनीश कुमार जी भी थे PSPCL से, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और पूरा प्रोसेस भी शेयर किया कि PSPCL इसको कैसे हैंडल कर रहा है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, PSPCL को अकेली डिस्कॉम है पंजाब में, उनको 30 मेगावाट का टारगेट मिला है। ऑलरेडी 10 मेगावाट से ऊपर एप्लीकेशंस प्रोसेस हो चुकी हैं, अराउंड 12 मेगावाट, और ऑलरेडी इंस्टॉलेशंस भी 1.5 मेगावाट को क्रॉस कर गई हैं, और उन्होंने ऑलमोस्ट 100 किलोवाट से अबव सब्सिडी भी रिलीज कर दिया है। सो दे आर रियली प्रोग्रेसिव. सो आई अगेन थैंक रजनीश जी आपका आने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. इट इज रियली हेल्पफुल कि सब डिस्कॉम्स को आपस में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है. सो थैंक यू अगेन टू यू and thank you so much. I think there are no more questions, so we can close the workshop. And after this workshop, I'll send an email which will have the brochure developed by UPPCL, and I will also add the details to be contacted by UPNet. Anji, Alvin ji, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? No, thank you. Okay, thank you so much everybody. Thank you.